प्रणाम। मैं अश्विनी अग्रवाल, भगवान जी के नाम से भी लोग जानते हैं मुझे, और आज मैं आपको कुछ मैरियर के बारे में बताऊंगा। एम सीड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एम सीड क्या है और इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या यूज है इसका, और हम लोग मतलब हर प्राणी इसका कैसे उपयोग कर सकता है और ये है क्या। बेसिकली ये एम सीड की डिस्कवरी हमारे टीम ने मिलकर के की थी और हमें लगा कि इसके बारे में अब जानकारी देने का समय आ गया है। और मैरियर करके एक वो शुरू किया गया, हैशटैग मैरियर, MEEREER, मैरियर यानी मैरिज से रिलेटेड। तो एक छोटी सी पुस्तक मेरे हाथ में आई थी एक्चुअली। इसका नाम है वयस्कता की ओर बढ़ते कदम, डेडिकेटेड टू यंगर जनरेशन, मूविंग इन द नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ। सी द की इज, वन थिंग इज selecting career. If you do not select right career based on your C seed analysis, your M seed will not be get utilized at all. You understand what I'm saying? That unless you cultivate or build your career, I would say cultivate your career. Normally we use the word cultivate, build or cultivate. Cultivate your career. Build means making a building, or cultivating means agriculture. So agriculture is a much vaster subject compared to building. Hence either word we can use, but we have to understand that career suitability, the profession success defines your awakening of M seed. It's directly connected. If you have some issues in your career, your married life is bound to become mess. Absolutely. And finally it might broke also. No control possible. So if you M seed is actually related to your capabilities to get married. What age you should get married? What do you know about yourself which you have to convey in your resume? And what is the content you have to look at the resume of the other person? Today the main criteria has become salary. Corona has proved that salary has no meaning. So salary can never be the criteria of doing marriage. It's a failed system. It has been going on, I don't know since when, but we are sure that if your M seed is not cultivated well, not developed well, उसका विकास ठीक से नहीं हुआ है, तो आप ये समझ लें कि आपकी पूरी जिंदगी इंसान की अगर पूरी जिंदगी देखी जाए तो है क्या। शुरू होती है एजुकेशन से। उससे पहले क्या है? एजुकेशन से पहले संस्कार बिल्डिंग। संस्कार बिल्ड किए जाते हैं परिवार द्वारा। परिवार में कौन? पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा, मामा, ताऊ, यही लोग तो हैं जो आपके संस्कारों को। तो उसके बाद आती है एजुकेशन। हमने एजुकेशन ले ली और देखा मार्केट ट्रेंड, और उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया है ये ले लेते हैं, हम लोग तो यही करते हैं, इसमें बहुत पैसे मिलते हैं। क्राइटेरिया वाज कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। दैट्स इट, द ओनली क्राइटेरिया। वेदर इट सूट्स यू और नॉट, इट विल मेक योर लाइफ बेटर और नॉट, नो थॉट अबाउट इट एट ऑल। But this corona period has conveyed the message well to each person, especially young generation. You know, it is said normally that a senior generation has got more affected because of corona. You know why?
they were more concerned about the salaries than the life. That is why all the problems faced by that generation, older generation, and younger generation doesn't believe in old generation. They are losing both ways. Old generation is losing in all respect. Senior generation gone, junior generation, sub-junior generation. There is the kids, my children, and children of my children. My children still listen to me sometimes, but children, they are not bothered at all. Why? Because we forgot to give our sanskars to them. We were not able to even talk about anything to them because there is no time. You are going in the morning when kids are sleeping, or they have already gone into the school. And when you come back to the office, from the office to home, or from your workplace to home, they are already slept. So totally gone case. So MSEED, no one knew that MSEED exists. No one knew that C-seed exists. And what are the contributions? What they contribute to your life. Your total life depends on C-seed and MSEED. Living. And whether you marry or you don't, doesn't matter. Unless you cultivate your analysis is done of C-seed, and M-seed has to be understood and cultivated. You have to do that. There is no other choice. Whether you marry or you don't marry, whether you study or you don't study, both have to be done. Whether you study or not, but career to you will make, na? Maybe even begging is a career. Even begging is a career. So, get the C-seed analyzed from people who are expert on analyzing. Mostly we call them PCC counselors. Or KAEREER, career counselors, you can say. And counselors are being trained at 4D Infuser Institute, Nehru Place, Delhi. It's very, very important to get your C-seed analyzed, then you join education. So before getting into education, even pre-nursery, don't waste life of your kid. You have no reason. People, I was surprised. We were talking about Marrier, when we started talking about Marrier technologies, way back in, say, about from 2011 or so, people are not aware of how to maintain womb. Womb in the female, the most important, the entire universe it represents. Do you know that? No one knows about womb at all. Nothing is known about it. And womb is the entire universe for the next generation. Maximum learning it does in that womb itself. Entire universe is available. Entire universe knowledge is available. But somebody has to become medium to transfer that information, knowledge. If you are not aware of it, aware of this at all, in fact, Mahabharata has shown that in the womb, Abhimanyu learned so many things. I am sure other people must have. But Abhimanyu is a real example. And maintaining the health in the womb. So priority is that womb has to be maintained properly. Starting when? When you cross your 4th year, when female cross her 4th year, after that the maintenance of the womb starts. It is must.
and after the age of 16 years the maintenance of the M seed starts. So you must understand that their most important part, body part of is womb for next generation. If you fulfill your responsibilities, the first responsibility is to bring the next generation, and second responsibility is the body parts which are responsible for it have to be maintained well. Reproduction system, and we don't even talk about it. We don't know what is that. Everything is obvious in that, and maximum learning is required there. I sometimes feel surprised that why these examples of Mahabharata were not talked about in the world to lead the human race in right direction. The luxury at that time, you can imagine buildings, Indraprastha which they created, marvelous, beyond imagination that this kind of flooring is possible. And calling that as a myth, and you lose everything. Your life has become mess. Whereas you should enjoy the cooking. 56 भोग कहा जाता है, 56 भोग हर एरिया के, ये नहीं कि सारे पूरे दुनिया को मिलाकर के 56 भोग. हर राष्ट्र के 56 भोग अलग अलग है, हर राष्ट्र के, हर स्टेट के 56 भोग अलग अलग है. कितना सारा स्वाद, टेस्ट, यंग जो आपकी जबान दी गई है, टेस्ट के लिए जागृत की गई है, दी गई है आपको सेंस, ज्ञानेंद्री, और उसको कहते हैं वो तो बंद कर दो. टेस्ट के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, टेस्ट को तो आप छोड़ दो. बताओ फिर जिंदगी में बचा क्या? फिर तो मैरियर और कैरियर बेकार है सब कुछ. आप पैसे का करोगे क्या? अगर आपको जबान का टेस्ट ही नहीं पता तो आप कैरियर का करोगे क्या? पैसे का करोगे क्या? अगर आपके पास एम सीड का पता ही नहीं है तो आप शादी करके करोगे क्या? बेकार है, सब बेकार है. और ये बात यंगर जनरेशन को, टीन कम्युनिटी जो कि अब शायद लेटर एज में चली गई है, 21, 22, 23, 24, 25 साल के बच्चे, या जो 30, 32 साल, 35 साल, मैं आई वुड से कि 24 से लेके और 40 साल तक, they said we are not interested in marrying. Females, they are saying we are not interested in marrying. Why? अरे जब सारी उम्र तुम लड़ते रहे, पेरेंट्स को कहते हैं, तो हम भी लड़ते रहेंगे तो फायदा क्या ऐसे लड़ाई का? इससे तो अच्छा है ना रहो. लड़ेंगे तो नहीं, कम से कम मतलब खराब कर्मफल तो नहीं कमाएंगे. लड़ाई करके कितने कर्मफल खराब कमाए जाते हैं पता है आपको? आप सोच भी नहीं सकते. आपने यंगर जनरेशन को बर्बाद कर दिया. आपकी लड़ाई ने, आपके आर्ग्यूमेंट्स ने यंगर जनरेशन को कहां डाल दिया. आज ड्रग्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है. कैसे निकलोगे इससे? अभी भी समय है. वैसे ये समय तो रह गई, पहले भी था, पर अब जो इस समय में वो समय है जब आपको ये सब चीजें अवेलेबल करा दी गई हैं. फाउकोलॉजी, उसने सारी जानकारी अवेलेबल करा दी है आपको कि लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य रूप में जन्म मिलता है, और लग्जूरियस लाइफ क्या होती है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है. सारे रास्ते दिखा दिए हैं. कंप्लीट, होलिस्टिक. और सबसे बड़ी बात यह है, ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम इज, हर कोई कर सकता है इसको. हर कोई कर सकता है इसको, कोई भी और कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में, बल्कि किसी भी प्लेनेट पर हो.
प्लैनेट मैनेजमेंट, हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है प्लैनेट मैनेजमेंट का। तो प्लैनेट मैनेजमेंट, इट डजंट मीन दैट वी आर मैनेजिंग अर्थ, एनी प्लैनेट मैनेजमेंट ऑन एनी प्लैनेट, फाउकोलॉजी इज द फाउंडेशन। upbringing of self, upbringing of kids, upbringing of next generation, taking care of old generation, everything is very well defined. I would still say at least C seed analysis you should do, and awake M seed and cultivate it to ensure that your total lifespan remains disease free, pain free, total lifespan pain free, Sanatan. Pain free life is Sanatan. Sanatan life doesn't mean that you will never die. No, that is a myth. That Sanatan means you will never die. No, that is a myth. Sanatan means no pain at all, pain free life. And it is possible. Paths have been given, रास्ता बना दिया, कोर्सेज दे दिए, ट्रेनिंग दे दी, हर चीज अवेलेबल करा दी है, पर यूज तो आपको करना पड़ेगा। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा कोर्स है, सब कुछ बहुत महंगा है। अगर आप लाइफ को सस्ता समझते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो मरना तो है, मरना तो हो ही जाएगा, मर तो जाएगा ही इंसान, पर कष्ट मुक्त मृत्यु चाहिए तो फिर तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और कष्ट मुक्त जीवन चाहिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, यही करना पड़ेगा। अगर ड्रग्स, आपको पता है ड्रग्स फैली क्यों? ड्रग्स जो है कष्ट से रिलीफ देती है। अगर आपको कोई पेन है, कॉमिफ्लेम लिया आपने, तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, पर क्या दर्द चला गया? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस ड्रग का असर खत्म होगा वापस आ जाएगा। वो तो एक किस्म से आपने काला चश्मा पहन लिया तो आपको दिखना बंद हो गया, जैसे ही आप चश्मा उतारोगे आपको फिर वही चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप चश्मा पहनना ही है तो फाउकोलॉजी का चश्मा पहनो, वो आपसे कुछ छुपाएगा नहीं, आपको इतना तैयार कर देगा। सामने वाला आपको चीटिंग करने आ रहा है तो आपको पता रहेगा कि वो मेरे को चीटिंग करने आ रहा है। अगर मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो ईर्ष्यावश अगर कोई दूसरा मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे पता रहेगा कि मेरे को वो मेरे से ईर्ष्या करता है और वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मुझे पता रहेगा। तो मैं मैं अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकता हूं। अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो सामने वाला मेरे से ईर्ष्या करता है और वो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, या ये जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश मेरे को की जा रही है वो ईर्ष्या के वजह से की जा रही है या चीटिंग की वजह से की जा रही है, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। चीटिंग से निमटना फिर आसान है, ईर्ष्या से निमटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपको ये तैयार करना ही पड़ेगा। एम सीड कल्टीवेशन आपके इन चीजों को टेक केयर करता है। नाइन्थ सेंस, कैलाश सेंस नाम दिया गया उसको, एकदम परफेक्ट। सिक्स सेंस आपको नॉर्मली चीटिंग के लिए कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है कि करने वाला है या नहीं करने वाला है, उसका थोड़ा सा आइडिया देती है। सिक्स सेंस, इंट्यूशन उससे थोड़ा ज्यादा देती है, लेकिन नाइन्थ सेंस परफेक्ट, वो तुरंत बता देगी कि आपको ईर्ष्या वो सामने वाला आपसे ईर्ष्या करता है। अगर आपकी नाइन्थ सेंस, कैलाश सेंस जागृत है, कल्टीवेटेड है, वेल डेवलप्ड है, तो वो आपको बता देगा कि वो आदमी आपसे ईर्ष्या करता है या वो इंसान आपसे ईर्ष्या करता है और उससे बच के रहना है, लेकिन संबंध नहीं काटने हैं।
क्यों कल को हो सकता है आपको पता लगे कि आपका जो स्पाउस है वही आपसे ईर्ष्या करता है या बच्चे आपसे ईर्ष्या करते हैं। नॉर्मली देखा गया है बहनों बहनों में ईर्ष्या होती है, भाइयों में होती है। महाभारत कहते थे कि रामायण घर में रखो, महाभारत नहीं रखनी है। कारण क्यों? ईर्ष्या का सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाभारत सिखाता है, देता है, बताता है, दिखा रहा है कि देखो ईर्ष्या से क्या होता है। तो नाइन्थ सेंस आपको डेवलप करनी ही करनी है। वो थोड़ी सी आपको एमसीड को डेवलप करने के काम भी आती है। एमसीड जागृत करने के लिए कुछ और प्रोसीजर है, बट एमसीड को जब डेवलप कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो आप, तो उस समय भी आपको उस नाइन्थ सेंस की जरूरत पड़ती है, उसका उपयोग होता है उसमें, कि कम से कम परिवार में जेलसी नहीं होनी चाहिए। अगर इतना भी हम अचीव कर लेते हैं तो ये समझो कि आपने मनुष्य जीवन का कुछ उपयोग कर लिया। लोग विवाह से भागते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे से चीटिंग, मेरे को चीट किया जाएगा। मैं खुद ईर्ष्या करता हूं तो मेरे से ईर्ष्या करेगा ही कोई ना कोई। विवाह ना करने का मूल कारण है ईर्ष्या, और वो कैलाश सेंस से ही समझ आती है। और कोई अगर जब तक वो सेंस जागृत नहीं होगी आपको पता नहीं लगेगा। ईर्ष्या का पता लगना सामने वाले में और अपने में। कैलाश सेंस को आपको जागृत करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। नाइन्थ सेंस कहा गया है उसको। अगर ईर्ष्या से होने वाले नुकसान से मुक्ति पानी है तो आपको नाइन्थ सेंस को विकसित करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। और एमसीड अगर आपका विकसित है तो विवाह करो, अगर विकसित नहीं है तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए। नाइन्थ सेंस आपकी विकसित है, होनी चाहिए, तो विवाह सक्सेसफुल होगा, एटलीस्ट फैमिली लाइफ बढ़िया होगी। प्रोफेशनल लाइफ अभी भी मिसिंग है उसमें, पर फैमिली लाइफ डेफिनेटली बढ़िया हो जाएगी। ये एक पुस्तक का मैंने नाम लिया था, व्यस्तता की ओर बढ़ते कदम। यानी जब आप 16 से, बल्कि 16 से क्यों 11 से लेकर के और 19 साल तक की उम्र, या 11 से 16 कह लो, 19 को तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, पर टीन एज जिसको कहा गया है, तो वो टीन एज की इंपॉर्टेंस, वैसे 30 से शुरू होता है, पर मैं 11 से कह रहा हूं, 13 से नहीं कह रहा हूं। 11 साल से लेके 19 साल तक आप विकास हो रहा है आपका, आपके सारे पांचों लेयर्स ऑफ द शरीर, पांचों लेयर ऑफ द शरीर का विकास हो रहा है। 5 लेयर के बारे में आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें पता लग जाएगा आपको। और एम सीड के लिए पांचों लेयर्स आपकी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, सेहतमंद होनी चाहिए। ये आप समझ लें इस बात को। ये पुस्तक जिसने भी पढ़ी ना, तो वो कहा उसने कि सर इस पुस्तक से तो मैं ज्योतिषी बन गया। अरे भैया ज्योतिषी कैसे बन गया तू? कहता सर मैंने घर जाके अपने बच्चों को कहा कि देखो तुम ये करो, ये करो, ये करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। वो कहते सर पापा आपने ज्योतिष कब से सीखी? तो ये पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट है, और क्या जरा सी पुस्तक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए खासकर। अब तो शायद आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, और इसका नेक्स्ट एडिशन अभी आया नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये राइटर है और ये इसकी फ्रंट पेज है और ये नाम है इसका। और ये मेरे ख्याल से इसको 10 साल हो गए, 10-12 साल पहले आई थी ये किताब। और
उसके बाद के लिए मैरियर के लिए एक ये किताब आई थी षोडशी, 16 से 24 साल तक की उम्र, वो इसको ये पुस्तक उसके बारे में कुछ कुछ गाइड करती है, समझाती है, बताती है। तो ये सब चीजें अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल कुछ नहीं है। हाँ, बात वही है कि अगर मैंने जापान नहीं देखा तो जापान एग्जिस्ट नहीं करता वाली बात से आपको निकलना पड़ेगा। सब कुछ एग्जिस्ट करता है, इसी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। पृथ्वी के ब्रेन ऑफ द अर्थ पता है किसको कहा जाता है? आपको शायद हैरानी होगी इस बात की जान करके, पहले भी ये बात कही गई है, कई बार हुई है ये बात, कि ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स किसको कहा जाता है? यूनिवर्स नहीं, सॉरी, अर्थ। तो ब्रेन, अगर आप वामन अवतार को समझें तो उन्होंने क्लियर कट दिखाया ये कि पहले कदम में उन्होंने क्या किया था। पहले कदम में उन्होंने पृथ्वी नापी थी, तो वो कदम कहां रखा था? दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में क्यों बना? कृष्ण को इस बात का पता था। इसीलिए उस जगह को कभी उन्होंने एग्रीकल्चर या किसी चीज में आने नहीं दिया, उसको जंगल बना के रखा, लेट इट इवॉल्व, कि वहां पे किसी का ध्यान जाएगा नहीं। और आने वाले समय में, दूरदर्शिता की बात कर रहा हूं मैं, ज्योतिष के, उनको पता था कि आने वाले समय में जब ये बात होगी तो पांडवों को जगह तो देनी पड़ेगी, उनको, हस्तिनापुर को, युधिष्ठिर को तो वो देना ही पड़ेगा, उसका जो स्थान है बड़ा वो है। धृतराष्ट्र सिर्फ केयर टेकर थे, देना ही पड़ेगा उनको। तो खांडवप्रस्थ दे देंगे, जंगल है, क्या करेंगे वहां जाकर के? और वहां तो पता नहीं कैसे कैसे जानवर रहते होंगे। नागलोक पूरा का पूरा वहीं पर था। वो स्थान इतना एनर्जेटिक था क्योंकि वहां पर इंद्रप्रस्थ की स्थापना होनी थी, इंद्रप्रस्थ बनना था, वहां पर नींव डलनी थी उसकी। तो वामन अवतार ने वो जगह पक्की करी गई थी, वामन अवतार के समय में वो जगह पक्की करी गई थी। तो पहला पैर जो उन्होंने रखा था वो यहां रखा था, दिल्ली में रखा था। जबकि राजा बलि मेरे ख्याल से वो कहीं केरल वेरल में थे, आई थिंक केरल में ही थे कहीं राजा बलि जो हुए हैं, जिन्होंने मतलब वामन अवतार, जिसके विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा, तो वो केरल में ही कहीं थे, आज का केरल जिसको कहा जाता है। तो पहला पैर उन्होंने यहां रखा था, दिल्ली में। तो इसको ब्रेन ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ ब्रेन ऑफ यूनिवर्स है, वहां पर जो डिसीजन लिए जाते हैं अल्टीमेट। इंद्र का स्थान है वो, इंद्र की गद्दी वहां पर लगी हुई है। इंद्र पूरी गैलेक्सी का राजा कहलाता है। और अब कृष्ण कृष्णेंद्र बनकर बैठे हैं। जब कृष्ण ने इंद्र गद्दी संभाली तो कृष्णेंद्र हो गए। पहले वो जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथ बनकर के बैठे थे। उससे पहले द्वारकाधीश बनकर के बैठे थे द्वारका में। और अब गैलेक्सी के राजा बनकर के बैठे हैं इंद्रप्रस्थ पे। अब कोई पूछे अगर कि क्या मैं देख सकता हूं उनको, तो मैं इसमें यही कहूंगा कि तब देख सकते हो जब आपकी योग्यता उतनी हो जाएगी कि उनको देख पाए। योग्यता का खेल है सारा का सारा, और कुछ नहीं है। आपकी योग्यता हो जाएगी तो आप भगवान जी से मिल सकते हो, आपकी योग्यता हो जाएगी आप इंद्रप्रस्थ देख सकते हो, आपकी योग्यता हो जाएगी आप इंद्र से मिल सकते हो, कृष्णेंद्र से मिल सकते हो। आपकी योग्यता के ऊपर है, मात्र आपकी योग्यता है और कुछ नहीं है। मात्र आपकी योग्यता है। और योग्यता आएगी सी सीट, एम सीट, हर चीज का उपयोग करना पड़ेगा जो आपके शरीर में है। 24 मॉलिक्यूल का शरीर है आपका। सबको स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है।
फिर जो बीज है आपके अंदर डले हुए, उन बीजों को विकसित करना आपकी जिम्मेदारी है। किस डायरेक्शन में विकसित करना है वो जानकारी दी गई है, उसको वो समझना आपकी जिम्मेदारी है। तभी आपकी योग्यता बढ़ेगी, नहीं तो योग्यता नहीं बढ़ती। इतनी आसान नहीं है योग्यता बढ़ाना। आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आप सोचते हो कि हर कोई ले सकता है क्या? हाँ, पर जिसकी योग्यता होगी वो ले सकता है। योग्यता इन ऑल रिस्पेक्ट। फीस भी देनी है, फॉर्म भी भरना है, और फॉर्म में गलती भी नहीं होनी चाहिए, और फॉर्म टाइम पे जमा कराना है। हर चीज सिखा देता है। आईआईटी का एडमिशन लेना है आपको तो हर चीज आपको सिखा देगी कि क्या क्या पैरामीटर हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, सिर्फ एक एडमिशन के लिए। तो इन चीजों को समझे। आज के लिए इतना ही है, समय समाप्त हो रहा है। एमसीड मैरियर टेक्नोलॉजी की बात शुरू की थी हमने, और उसी से सिलसिले में रिलेटेड ये सब कुछ है, क्योंकि मैरियर ही नेक्स्ट जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। मैरियर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है आपकी नेक्स्ट जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी आपकी है। तो मैरियर अगर आपको एमसीड की विकास, उसका उपयोग और सी सीड के बिना वो नहीं हो सकता। तो ये सारा इंटरकनेक्शन, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा। अश्विनी गुच्छल पर ये वीडियो मिल जाएंगे आपको। भोगवान टीवी FB लाइव पर ये वीडियो दिख सकते हैं आपको, लाइव होते हैं। और एक और था एम्बेडेड अग्रवाल, यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो मिल सकते हैं। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट की साइट पर भी कुछ वीडियो मिल सकते हैं, सारे तो नहीं मिलेंगे, कुछ मिल सकते हैं जिनको आप देख सकते हो। लिंक हो सकता है आपको सारे मिल जाए। और 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट या उसकी ब्रांचेस इसकी ट्रेनिंग देते हैं। फार्माकोलॉजी से संबंधित जितने भी सीड्स हैं उनको कैसे विकास करना है, कैसे डेवलप करना है, कौन सा सीड किस चीज के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। निश्चल टेम्पल्स में आपको वो जानकारी मिल जाएगी, 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग मिल जाएगी, और इंटरनेट तो है ही आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।